Hello everyone, a very happy new year to all of you. So, कैसी है जनता? I hope everyone is ready for this too much of an year. Why too much? You all know that ये year कुछ too much है because it is 2022. ये सारे two है तो automatically too much year तो बन ही गया. So when it is too much, then we obviously need to plan for the same. And the most important aspect of our life is our health. For any learner, any viewer, it is very important कि वो healthy रहें क्योंकि अगर healthy रहेंगे तभी लर्निंग भी हो पाएगा. So today we have with us Mr. Neelab Khatri, who is a fitness expert, and he would be guiding us that 5 tips of fitness through which we can stay fit in 2022. Right? You all have been studying, right? And Vedantu believes कि हर बच्चा जो है वो healthy होना चाहिए. We have our different policies also for keeping students healthy, right? While they are watching any particular session. But today we are going to explore the fitness thing from exercising point of view, that how you can exercise and how you can stay fit in 2022, and you can add that to your resolution. So here is Mr. Neelab Khatri. Let's move on to his introduction. Well, as far as Neelab is concerned, he is a certified personal trainer from Ace and Fit, that is USA and Thailand. He is also a sports nutritionist from Ace and Fit, and then US Army Bootcamp coach. He's injury rehabilitation coach from Australia, obesity specialist from Graz, Greece, bodybuilding champion and coach for Muscle Mania and IFBB athletes. So now you can very well see that how good he is in his domain. So let's listen to him that how we can keep ourselves fit. So Neelab, what is the agenda today? Ji, thank you so much for the warm welcome, sir. And I wish a very happy and a healthy new year for all of our students, for all of our learners, and all Vedans who are joining us today. So, a very happy, prosperous, and a healthy new year to everyone. So, the agenda of the day would be how to master the 5 verticals or the 5 pillars of life. So, basically, when we talk about life, we have work, we have our personal life, which can be stratified into exercise, which can be stratified into nutrition, hydration, meditation, and sleep. So ये 5 चीज़ों का हम ध्यान रखते तो हैं, बट उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए सो दैट यू कैन मास्टर दीज पिलर्स. सो एक्सरसाइज के मैं आपको टिप्स दे दूंगा, न्यूट्रिशन के कुछ डूज एंड डोंट्स बता दूंगा, हाइड्रेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना, आपकी ब्रेन कैसे वर्क करेगा, मेडिटेशन विच इज़ आप इंटरनलाइज करते हो एंड आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो कि व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ एंड क्या आप हैप्पी हैं कि नहीं. सो मेडिटेशन के ऊपर फोकस करेंगे. एंड लास्टली विच इज़ स्लीप, द मोस्ट अंडर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन और मेडिसिन ऑन द प्लानट. इन 5 को आज हम मास्टर करते हैं सो दैट यू कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन 2022. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so here we go 2022. Yes. So, everyone, this is my definition of fitness, and I vouch for this. I am an advent apostle of this definition. The optimal fitness of a human being is when he or she has the optimal endurance. Endurance का मतलब ये होता है कि एक्सरसाइज करना या किसी भी काम को करना बिना थके एक लंबे अमाउंट ऑफ टाइम तक. सो फॉर एग्जांपल, आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटे कर रहे हो, 6 घंटे कर रहे हो, आप थक नहीं रहे. दैट इज़ योर एंड्योरेंस. सो एंड्योरेंस कैन बी स्ट्रैटिफाइड इनटू मेंटल एंड्योरेंस कि आप कितना माइंड को वर्क करवा सकते हो, एंड बॉडी का एंड्योरेंस. स्ट्रेंथ की आप कितना ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हो वर्सेस आप कितनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स या कॉन्वोल्यूटेड कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझ पाते हो. सो माइंड एंड ब्रेन, बॉडी एंड ब्रेन अगेन साथ में दोनों का एक नेक्सस बनता है. मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इज़ बोथ फिजिकल एज वेल एज मेटाफिजिकल. लाइफ में आपकी बॉडी मूव करती है एंड साथ के साथ आपके मसल्स आपको स्टेबिलिटी देते हैं. ऐसे ही आपकी जो पढ़ाई या एजुकेशन है वो आपको एक नए होराइजन या वर्च्यू पे लेके जाता है, दैट इज़ मोबिलिटी. एंड उससे जो करियर में स्टेबिलिटी आता है या फाइनेंसेस आते हैं वो आपको स्टेबल रखता है करियर में. सो आप देख रहे होंगे कि कैसे माइंड एंड बॉडी एक दूसरे के साथ पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं. सो व्हेन द माइंड एंड द बॉडी इस एंड्योरेंस के मामले में, स्ट्रेंथ के मामले में, मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी के मामले में 100% का स्कोर जैसे हमारे वेदांतों के बच्चों का है ही, उसे मैं फिटनेस मानता हूँ. So this is why you need to be fit. Let's move forward. Okay, so that was an introduction concept to fitness. Let's move on to the first point. Hanji. So mastering your mind and mastering your body. Everybody here knows that the day that they were born and ever since आपका heart and आपके सारे muscles, say for example organs, so आपका brain, आपका heart, आपका liver, आपके lungs, आपके kidney, आपकी spleen, every organ that you have
वर्क्स 24/7, वो कभी बंद नहीं होता, उसने नॉन स्टॉप काम किया है। अब इमेजिन करिए कि इफ़ दैट ऑर्गन कैन वर्क नॉन स्टॉप, लेकिन अगर मैं उसे और स्ट्रॉन्ग कर दूँ तो आप लाइफ में कितना ज़्यादा और आउटपुट निकाल पाएंगे। सो वॉट वी आर एमिंग टुडे इज़ वील टीच यू हाउ टू मास्टर योर माइंड एंड वील टीच you how to master your body. So let's open this box up. Move ahead, sir. So exercise. This is the first pillar of fitness. So people do ask me कि exercise ज़रूरी क्यों है? And on the right side you can see exercise is important because of these 4 factors. First of all, exercise करने से आपके body के अंदर पूरे के पूरे blood में एक हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है जिसे हम एंडोर्फिन कहते हैं। वो एक नेचुरल पेन किलर या रिलैक्सेंट होता है। सो जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने की वजह से आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं बैठने से, आप अगर वर्कआउट भी कर रहे हैं या फिर आप गेम्स खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्रिकेट खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, वट एवर दैट यू फैंसी, उसकी वजह से मसल्स टाइट होते हैं। सो वेन एवर यू एक्सरसाइज एंड वेन यू एक्सरसाइज करेक्टिवली, आपके एंडोर्फिन रिलीज होगा जिससे लाइफ में आपको पेन नहीं होगा एंड स्ट्रेस आपको बहुत कम फील होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हेल्दी और हैप्पी रहना चाहते हैं, फॉर द ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज होगा थ्रू एक्सरसाइज। सेकेंडली, फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर पेरेंट्स अलाइक, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो आपका माइंड एंड मसल कनेक्शन और स्ट्रांग होता है, जिसे हम न्यूरोलॉजी में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। सो आपका ब्रेन एक प्लायंट या एक प्लास्टिक पदार्थ जैसा है। वेन एवर यू टैकल इट, वेन एवर यू मैलिएट इट, तो वो इलास्टिक जैसा खिंचता है। सो दिस इज़ वाई एक्सरसाइज, जो कि आपके मसल्स को खींच रहा है, साथ के साथ आपके ब्रेन को भी नई चीज़ें सिखाता है, विच मेक्स यू मोर स्मार्ट। सो पीपल हु आर एक्टिव आर बेटर एट लर्निंग न्यू थिंग्स एंड फास्टर। सो आप नए कॉन्सेप्ट बहुत ईजी से याद कर पाएंगे। थर्ड एरिया विच इज़ द बॉडी इट सेल्फ, एक्सरसाइज करने से आपका मसल मास बढ़ेगा, बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ेगी, फैट परसेंटेज कम हो जाएगा एंड आप मस्कुलर दिखेंगे। सो आपको अगर मेरे मसल्स दिख रहे हो, दिस इज़ फैट परसेंटेज बहुत कम हो गया। सो दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। सो ये हेल्थ बेनिफिट्स हो गए। एंड लास्टली, एक्सरसाइज अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो करनी कितनी है? सो एक्सरसाइज कैन बी डन 30 मिनट्स अ डे, ट्वाइस अ वीक। सो आप फॉर एग्जाम्पल मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन वेट ट्रेनिंग करिए, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन कार्डियो करिए। हर एक सेशन 30 मिनट का हुआ, यू आर सॉर्टेड इन लाइफ। बहुत अच्छी फिजिक बन जाएगी एंड बहुत अच्छा आपका माइंड भी रहेगा। सो दिस इज एक्सरसाइज, दिस इज वाई एक्सरसाइज वॉज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट प्लीज। Great. So, few of the tips in concern to exercising and the importance. चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, दिस इज ईटिंग वेल। सो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक एवोकाडो एग ऑमलेट दिख रहा होगा, विच इज़ वेरी टेस्टी, वेरी यमी। लेकिन क्या हमारा डे भर का फूड ऐसा दिखता है? क्या हम एवरी डे इस तरीके का मील खा पाते हैं? सो दिस इज़ वाई ईटिंग और ईटिंग वेल इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ हेल्दी वेलबींग। सो एक्सरसाइज के साथ अब न्यूट्रिशन कैसे इंपॉर्टेंट है फॉर द ब्रेन एंड द बॉडी, लेट्स लुक एट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप खाना खाते हो उसके अंदर हमें केमिकल स्ट्रैटिफिकेशन में वी गेट एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑल्सो नोन एज एटीपी। ये एनर्जी करेंसी है बॉडी का, ये आपको खाने से मिलेगा। सो कभी भी क्रैश डाइटिंग मत करिए, खाना कम मत खाइए, ऑल इन द नेम ऑफ लूजिंग वेट। खाना बैलेंस्ड होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज वो ब्रेन के लिए एनर्जी देता है। सेकेंडली, आप जब अच्छा खाना खाते हो तो गट में, आपके स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर एक हार्मोन बनता है विच इज़ सेरोटोनिन। इसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। सो इसकी वजह से आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, फुल ऑफ लाइफ रहोगे। आप सारे बच्चों ने नोटिस किया होगा, इवन पेरेंट्स ने नोटिस किया होगा कि यार पिज़्ज़ा खा के बड़ी खुशी मिली, यार वो मिल्क शेक, ओरियो शेक पी के बहुत मज़ा आ गया यार, लाइफ में एंजॉय किया मैंने। सो वो टेस्ट की वजह से नहीं है, वो सेरोटोनिन की वजह से है। सो जब भी आप अपने मनपसंद खाना खाते हैं तो उससे आप हैप्पी इसलिए फील करते हो बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन। वर्सेस अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हो, उसको खा के भी आपकी एनर्जी बढ़ती है। सो वो एक और बड़ा सेरोटोनिन का स्पाइक देता है। सो हेल्दी फूड इज़ वॉट मेक्स यू हैप्पी। सो आप हेल्दी फूड खाइए। थर्डली, आपके हेल्थ बेनिफिट्स, रवजोत सर आप कुछ पूछ रहे हैं? ओके, सॉरी। सो दैट मीन्स हम कुछ भी खाएंगे तो मीन्स सेरोटोनिन प्रोड्यूस होगा ही होगा। यस, बट सेरोटोनिन पिज़्ज़ा से भी रिलीज़ होता है, सेरोटोनिन आपका एक हेल्दी मील से भी रिलीज़ होता है। अब आप कैलोरीज़ के हिसाब से क्या प्रेफर करोगे कि आप खाना सिर्फ खुशी के लिए खाओगे या फिर बॉडी की सेहत के लिए भी खाओगे? सो आपके पास चॉइस है। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि हेल्दी खाने के साथ खुशी मिले ना। यस, हाँ एग्जैक्टली।
सो थर्ड पॉइंट, हेल्थ बेनिफिट्स। एक्सरसाइज अगर हेल्दी है तो फिर न्यूट्रिशन भी हेल्दी है। हमारी बॉडी के अंदर जैसे टेस्टोस्टेरोन बनता है, प्रोजेस्टेरोन बनता है, प्रोलैक्टिन बनता है, एस्ट्राडायोल बनता है। सो ये एक पूरा प्लेथरा है ऑफ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स ऑप्टिमली तब बनेंगे जब आप एक बैलेंस मील खाते हो। सिर्फ फास्ट फूड खाने से या क्रैश डाइटिंग से सारे हार्मोन्स हेल्दी नहीं रहेंगे। सो अगेन, डाइट की वजह से यू वुड बी हेल्दी, हार्मोनली स्पीकिंग। एंड लास्ट ऑफ ऑल, कितना खाना खाऊं, कितनी बारी खाऊं दिन में? सो आई रिकमेंड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप दिन में एटलीस्ट 3 मील्स खाइए, मिनिमम 3 होने चाहिए, जो 2 से 3 घंटे के स्पेस में हो, इंक्लूडिंग स्नैक्स। सो अगर आप सुबह 9 बजे उठ रहे हो तो 9, 12, फिर उसके बाद आपका 3, 3, 6, 6, फिर रात के 9। सो ऐसे 2 से 3 घंटे के गैप में आपके मील्स होने चाहिए, जो कि एक कंप्लीट मील हो, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर सब कुछ हो। अब यहाँ नॉर्थ इंडिया में एक बहुत अच्छा चीज़ है जो कि मैं कल्चरल के हिसाब से देखता हूँ। कल्चर यहाँ ये डिक्टेट करता है कि दूध तो पियेंगे ही पियेंगे, दूध नहीं है तो हम दही ज़रूर खाएंगे। सो ये पूरे इंडिया में फॉलो होना चाहिए। बच्चों, अगर आप और अच्छा अपना बोन्स बिल्डअप करना चाहते हैं और मेमोरी और शार्प करना चाहते हैं, दिन में 3 बारी दूध पीजिएगा। नेक्स्ट प्लीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। अब हाइड्रेशन आता है, पानी। इसमें मैं यही एक टैगलाइन दे सकता हूँ कि जल ही जीवन है। सो वी नो फॉर अ फैक्ट दैट आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। 70% जो एक शरीर में का वेट होता है वो 70% वाटर होता है, ब्रेन 70% वाटर होता है, ब्लड 70% वाटर होता है। सो आपको अहमियत समझ में आ रही होगी कि पानी ज़रूरी कितना है। सो सिंस अगर ब्रेन 70% वाटर से बना है, तो हम अगर वो 70% ना दें तो ब्रेन की पीएच ड्रॉप हो जाती है। सो किड्स, यू ऑलरेडी नो दिस इज पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। एनीथिंग बिलो 7 इज़ एसिडिक, अबव 7 इज़ अल्कलाइन। सो हमारे ब्रेन को हमेशा एक न्यूट्रल पीएच चाहिए होता है, वरना हेडेक्स होते हैं। सो पानी कभी कम मत करिएगा, पानी ऑप्टिमली पीजिए। माई वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल इज़ 4 लीटर्स अ डे। ये मिनिमम चाहिए मसल्स के लिए और ब्रेन के लिए। सेकेंडली, आपके ब्रेन जो है वो रन करता है ग्लूकोज पे, एटीपी पे। सो ब्रेन तक ग्लूकोज पहुंचेगा कैसे? ब्लड के थ्रू। और ब्लड किससे बना? पानी के थ्रू। तो आप पानी दोगे तब ब्रेन चलेगा। थर्ड एरिया, अगेन इन्वॉल्विंग द ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर एक टाउ नाम का प्रोटीन बनता है और बीटा एमिलॉइड बाय प्रोडक्ट बनता है। ये दोनों ही चीज़ें, जैसे आपके कार अगर आपने 2 महीने तक नहीं ऑन किया तो उसमें से कार्बन निकलता है, धुआं निकलता है, क्योंकि वो फ्यूल ख़राब हो गया था अंदर पड़े पड़े। वैसे ही ब्रेन के अंदर टाउ और बीटा एमिलॉइड स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप पानी नहीं दोगे और अगर आप अच्छी स्लीप नहीं दोगे तो आपको मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑल्जाइमर्स डिजीज़, भूलने की बीमारी। तो अगर आप पानी पी रहे हो, आपको ये बीमारी नहीं होगी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है पानी। एंड लास्टली, कितना पानी पीना चाहिए? आप अपने प्यास के हिसाब से पी सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर थर्स्टी आफ्टर 40 और 50 मिनट्स, आप एक छोटा 250 ml का ग्लास पी लीजिए। थ्रू आउट द डे आपको मिनिमम 4 लीटर्स पीना है। सो ये प्लीज़ मेक श्योर, भले ही सर्दी हो, गर्मी हो, ठंड ज़्यादा है, थोड़ा सा उसको कोसा करके या लूक वार्म करके पी लीजिए, बट कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। नेक्स्ट प्लीज़। मेडिटेशन, मैं यहाँ पे कैवियाट दे रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस। आपको लेफ्ट साइड पे इलस्ट्रेशन में मैम दिख रहे होंगे हु इज़ मेडिटेटिंग। बट मेडिटेशन हमेशा योगा नहीं होता या आध्यात्म या ध्यान नहीं होता। मेडिटेशन इज़ समथिंग दैट यू डू दैट मेक्स यू हैप्पी। अगर आप जिम जाके खुश हो रहे हैं, अगर आप वीडियो गेम्स खेल के खुश हो रहे हैं, अगर आप ड्राइंग करके, सिंगिंग करके, कुकिंग करके, अपने बच्चों के साथ खेल के आपको खुशी होती है, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। प्लीज़ उसे कंफ्यूज मत करिएगा कि मुझे अलग से टाइम निकाल के योगा करना है। इसके पीछे साइंस ये है, जब आप ऐसा कोई काम करते हो, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, उससे आपकी एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो वापस रीइंटीग्रेट हो जाते हैं, एड्रीनल फटीग कम हो जाता है। सो अगर आपको ड्राइविंग करना पसंद है, बिल्कुल ड्राइव करिए, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। उसको एक काम की तरह मत सोचिएगा। सो अब मैं मेडिटेशन के ऊपर इनपुट्स दे देता हूँ। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपको खुशी होती है, आप हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करते हो और आप अपने आप को ट्रू लेंसेज से देखते हो कि यार मेरे अंदर और कमी क्या है, मैं और क्या नया पढ़ लूँ और क्या नया सीख लूँ जिससे लाइफ में ग्रोथ ही मिलेगा। सेकेंडली, जब आप मेडिटेट करते हैं या आप बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन करते हो, तो यू बिकम अवेयर और सेल्फ अवेयर फॉर द फैक्ट दैट आई हैव हॉर्मोन्स, आई हैव बैड मूड्स, आई हैव गुड मूड्स, बट आई डोंट नीड टू बी अ स्लेव ऑफ माई बैड मूड्स। कि आज दिन खराब नहीं है, वो मेरे ब्रेन में सिर्फ एक हार्मोन था जो मुझे ऐसा फील करवा रहा है। अब मैं उस स्ट्रेस को कैसे किल कर सकता हूँ? अच्छा खाना खा के,
अच्छा सॉन्ग सुन के, सो आप स्लेव नहीं बनते. सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग गुड. हेल्थ बेनिफिट्स व्हेन इट कम्स टू मेडिटेशन, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है, ब्रीदिंग बढ़ी हुई रहती है, वो मेडिटेशन से कम हो जाता है ना, आप एक रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं. सो मेडिटेशन का ये भी एक फ़ायदा है. मेडिटेशन कितना करना चाहिए? अनलिमिटेड. कोई टाइमिंग नहीं है, कोई इसके नंबर ऑफ सेट रेप नहीं है. आप दिन भर में जो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे. सो अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन है, आप लाइफ में अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आपको काम वो करना है जिससे आप खुश होते हो. सो मेक श्योर कि आप मेडिटेट कर रहे हैं एवरी डे. लास्ट प्लीज़. दिस इज़ अ स्लीप, द लास्ट पिलर ऑफ फिटनेस, एंड वील कंक्लूड हियर. हमारी स्लीप इतनी ज़रूरी क्यों है और स्लीप की वजह से ब्रेन एंड बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक पर्सन 8 से 9 आवर्स एवरी डे सो रहे हैं, तो उन्होंने दिन भर में जितनी मेमोरीज ली थी, दिन भर में जितना भी नया टॉपिक पढ़ाई की थी, कॉन्सेप्ट्स देखे थे, बिजनेस में नए चैलेंजेस फील किए थे, वो सारा डेटा आपके ब्रेन से ट्रांसफ़र होकर नियो कॉर्टेक्स, कोर मेमोरी कॉर्टेक्स में चला जाता है, एंड आपकी मेमोरी शार्प हो जाती है. सो इफ़ यू आर स्लीपिंग 9 आवर्स, आप ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा शार्प रहेंगे. सेकेंडली, लाइफ में आपने सुना होगा कि यार मुझे स्ट्रेस बहुत है, नींद नहीं आ रही, कल मेरी एक मीटिंग है. आप उस मीटिंग में बेटर परफॉर्म या आप उस एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म तब कर पाएंगे जब आप सो रहे हो. सो आप लाइफ में अगर कहीं अटक गए, एक स्पीड ब्रेकर है एंड मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कहते हैं कि यार आज सो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचना नेक्स्ट डे. इन साइंस इट इज़ सेड दैट व्हेन यू स्लीप विथ योर प्रॉब्लम्स, आपका ब्रेन शट ऑफ हो जाएगा एंड सबकॉन्शियस ब्रेन उसके सोल्यूशंस आपको प्रपोज करेगा, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं. So this is how sleep helps in increasing creativity. Lastly, when you sleep optimally, आपका हार्ट हेल्दी है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा रहेगा, एंड आपके हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन ज़्यादा बनेगा, मेलाटोनिन जो स्लीप साइकिल है वो हार्मोन ज़्यादा अच्छा बनेगा, आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन और बनेगा, टेस्टोस्टेरोन और बनेगा. सो यू वुड बी मोर मस्कुलर एंड यू वुड बी मोर लीन. सो हेल्थ बेनिफिट स्लीप के ये हो गए. लास्टली, कितना सोना चाहिए मुझे? हर एक ह्यूमन बीइंग को, भले ही उनकी एज जो भी हो, मिनिमम 8 आवर्स चाहिए. एनीथिंग अंडर 8, आप अपनी बॉडी को धोखा दे रहे हो और आप अपने आप को चीट कर रहे हैं. प्लीज़ डू नॉट डू दैट. मिनिमम 8 आवर्स आपको चाहिए फॉर रिकवरी ऑफ द ब्रेन एंड द बॉडी, क्योंकि बॉडी एंड ब्रेन दो अलग अलग साइकिल्स में रिकवर करता है. सिर्फ 4 घंटे सोने से ब्रेन एंड बॉडी रिकवर नहीं करेगा. सो वी नीड 8 मिनिमम. अगर आप अपना एग्ज़ाम या अपने बिजनेस को लेके बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, सुबह मेरी 4 बजे मीटिंग है, प्लीज़ स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करके काम मत करिएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट डे और पुअर परफॉर्म करेंगे. सो मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग वेल. नेक्स्ट प्लीज़. This is the summary what we propose at Vedantu. You owe it to yourself to be the best version of your life. आपके पास एक लाइफ मिला है, आपके पास ये जो 5 पिलर्स थे, इनको मास्टर करने की सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है. सो वी गेट ओनली वन चांस टू हैव अ गो एट दिस जर्नी कॉल्ड लाइफ. क्या आप अपने लाइफ में सबसे बेस्ट वर्जन नहीं बनना चाहते अपना? क्या सबसे बेस्ट नहीं अचीव करना चाहते? बी इट फाइनेंसेस, बी इट हेल्थ, बी इट हैप्पीनेस, बी इट फैमिली, बी इट लव. सो सी, we have only one chance at life. Make sure that you're doing your best every day. So this is what I propose, and this is what we at Great. Vedantu wanted. So Great. So thank you, those were the Ravjot tips. sir. Those were the fantastic tips by Mr. नीरव खत्री. एंड लास्ट वाला तो हमारा फेवरेट है. हम VOS पे भी यही बोलते हैं that सोना बहुत जरूरी है, बट हम सोने गोल्ड से बोलते हैं. Basically, you need to bring gold for Olympiads, right? तो वो भी सोना है और ये भी सोना है. That is, सोने के साथ बहुत कुछ कनेक्टेड है. यू नीड टू हैव अ साउंड स्लीप, राइट? तभी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है. दैट इज अ क्लियर मैसेज. पानी बहुत जरूरी है, ये आपको बता दिया गया. खाना बहुत जरूरी है, टाइमली खाना, कितना खाना और क्यों खाना, सब आपको बताया गया है, राइट? सो टिप्स हैव बीन शेयर्ड एंड वी आर थैंकफुल टू मिस्टर नीरव खत्री फॉर coming onto our channel and guiding our listeners on this. So thank you, Nirav, and thank you, audience, for listening to this. All you have to do is now just implement this. इसको implement कीजिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और वेदांतु के साथ अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए. Thank you very much.